So now today's topic is the electrophoresis. So what is the exact meaning of the electrophoresis? We will see. So electrophoresis deals with the motion of the particles, okay, and that motion of the particles happens where, in which medium, in the gel medium or the fluid, okay, and within a relatively uniform electric field, okay. And what is the use of this electrophoresis? For separating. Separating what? Separating the molecules. Molecules, on which basis they separate the molecules? They separate the molecules on the basis of their charge, size, and their binding affinity. So these are called as electrophoresis. Thereafter, now electrophoresis of anions, if we say anions, the name itself indicate that they are the negatively charged particles, and if they are the electrophoresis of anions, then we called it as a term known as the anaphoresis. Okay, this can come in the MCQ. Okay, so anaphoresis. While the electrophoresis of cations, that is the positively charged particles, that is called as the cataphoresis. Okay, and now we will move toward the principle. Very, very important. Is it okay with all of you? Simple? Till now it's simple. Understood? Hello? Understood? Understood, or you want me to repeat it? Understood, or you want me to repeat it? Understood, sir. Understood. Okay, fine. Now the principle. So we may say electrophoresis as a physical method of analysis. Okay, and this physical method of analysis is based upon the migration. Migration of what? Electrically charged proteins, thereafter colloids, molecules. Okay, and these particles are electrically charged when they are dissolved, okay, thereafter dispersed into the electrolytic solution in the direction of the electrode, okay, and their polarity would be bearing their opposite polarity when an electric current is passed through it. Now what do you mean by electrophoretic movement? Okay, so this definition can be asked in your exams, or this can be molded into an MCQ. Okay, so basically electrophoretic movement is the rate of movement that happens. The unit of the electrophoretic mobility is in meters per second of the charged particles under the action of electric field, or I volt per meter, and expressed in square meters per volt, and that is expressed in square meters per volt. Okay, for example, practical, if it is given in square meters per volt, okay, so the mobility is specific for a given electrolyte under specific conditions. Okay, you may see here the two zones. These are called as the buffer zones. Okay, here are the cationic particles. Here are the anionic particles. Polyacrylamide or the agarose gel would be there. Cathode, the reaction would be there. Okay, thereafter splitting hydrolysis would be there, and on anode you will see the two molecules of the water, okay, and they will provide oxygen with the 4 H plus ions and the 4 electrons. So this is the principle for electrophoresis. Okay, now the equation. The electrophoresis is best defined by the equation mu. Okay, so electrophoretic mobility, basically the electrophoretic mobility is defined by an equation. That equation is mu is equivalent to q upon 6 pi r neta. Okay, now see what is mu. Mu is nothing but the electrophoretic mobility, q net charge on the ion, r
ionic radius of the solute, and neta would be the viscosity of the medium. Now electrophoretic mobility. So basically, if we talk about the electrophoretic mobility, so it is directly proportional. Directly proportional to what? It is directly proportional to net charge and inversely proportional to molecular size and viscosity of the electrophoresis medium. Okay. Now, what thing affects mobility more? So that is nothing but the pH of the solution. Okay. And if we consider the pH of the solution, depending upon the method used, so electrophoretic mobility is either measured directly or compared with the reference standard. Okay. Now, based upon the type of apparatus what we are using, the electrophoretic mobility can be divided into two categories. Okay. So first is the free or the moving boundary, and other is called as the zone electrophoresis. Okay. Using a supporting medium. Now zone electrophoresis includes your paper, gel as agar, starch or polyacrylamide. I hope this is clear to all of you. What is the unit of electrophoretic mobility? Meters per second for charged particles under action of the electric field, or I volt per meter, and expressed as square meters or per volt second. Square meters per volt second. Can we proceed? If you want, we will proceed. If you want, I'll repeat. Have you understood the concept? Yes. Can I assume you have got the concept? Please respond. Yes, sir. Okay. Now the advantages of paper chromatography, it's simple method, rapid method, less quantitative method, okay, less and cheaper method. We have understood these facts, but once more we are revising the things, as electrophoresis is related to paper chromatography also. So can be identified by paper chromatographic method. What things can be identified? Organic, unknown inorganic compounds as well as organic compounds. Okay. And the space constant, if it is there, then paper chromatography still works. If more space is there, still it works. So it does not occupy much more space. Now, limitations of paper chromatography: large quantity of the sample can be applied on the paper chromatography. And if we talk about the quantitative analysis, paper chromatography is not highly effective. Complex mixtures are there, so you can't expect the paper chromatography to give the results, and less accurate compared to HPLC or the HPTLC. Now the factor affecting electrophoretic mobility. Okay, so electrophoretic mobility is nothing but the solute's response, okay, to the applied electrical field. Okay, now we will see what are the factors. First is the sample. Sample is the charge upon mass ratio. Okay, and the sample indicates the electrophoretic mobility. So we may say the mass depends on the molecular size and the shape. Charge. Okay. If the charge is high, greater would be electrophoretic mobility. So charge dependent on medium pH. Furthermore, size, larger size, okay, greater are the frictional and the electrostatic forces exerted on the medium. Thus, larger particles have smaller electrophoretic mobility. Now, the shape, okay, so rounded contours, if there are there, so that leads to very less friction.
and electrostatic retardation. Then the sharper contours, example, globular and the fibrous proteins and formal will migrate fast. Thereafter, electric field. Okay, so migration, what migration rate? If we increase the migration rate, but you will observe an increase in the potential gradients. Okay, thereafter, which ions carry the current? Buffer ions carry the current in the solution between the two electrode. So when the buffer ions carry the current in the solution between the two electrodes, what we observe? We observe an increase in the potential difference. Okay, that increases the current. The resistance to the current flow and the migration rate are inversely proportional. Therefore, power pack has to be made available to the control the constant levels without producing heat. Medium means the inert supporting medium, generally used for electrophoresis. Okay, and what are the properties expected for the medium? Is they should exert adsorption or the molecular sieving, and they should affect the particles. Okay, thus influencing the migration rate. Buffers, what they do? They maintain the pH of the supporting medium. Okay, and they affect the electrophoretic mobility of the sample. Okay, so now in buffer, what are the things which affect? The composition is there, ionic strength is there, pH. So now we will talk in the buffer about the composition. So basically buffers which are used are formats, phosphates, citrates, acetates, and barbitone. Okay. Now, how we choose the buffer? So we choose the buffer based upon their type of the sample that has to be separated by electrophoresis. Thereafter, buffer affects the electrophoretic mobility if it binds to the sample component being separated. Now, the ionic strength. So buffer have the what is the ionic strength of the buffer? They are having the ionic strength between 0.05 to 0.1 molar, usually selected. Okay, and if we increase the ionic strength of the buffer, what it indicates that the buffer will carry a large share of current, while the sample will carry a small part. Okay, and what it indicates, यानी बफर ज्यादा करंट फ्लो करेगा और सैंपल कम करेगा. What it indicates, this shows the migration of the sample of the components, and if the ionic strength of the buffer increases, it indicates that the sample ions will carry a large share of the current, thus resulting in faster separation, and hence this causes diffusion of the smaller components to be with a high associated with the loss of resolution. Thereafter, pH also. Okay, and direction and the extent. Direction and extent of what? Migration. Migration of what? Ampholites. Ampholites means sample. That will depend upon the buffer pH. Buffers having the pH 1 to 11 are best for the desired separation. Now the medium. So inert medium, if we choose the inert medium, what will happen? They will exert adsorption, molecular sieving effect on the particle, and thus they influence the migration rate. Okay. Now, what is adsorption? So adsorption indicates retention. Retention on what? Supporting medium surface. Adsorption can reduce the rate and resolution of the electrophoretic separation. Thereafter, molecular sieving, polyacrylamide, agar, starch, Sephadex media, they have the cross-link structures. Okay,
What they give rise? They give rise to the pores, okay, within the gel beads. Now, what is Sephadex? What is polyacrylamide? Sephadex are the larger molecules, okay, and their pores have one disadvantage, that they do not enter the gel bead, okay, and migrate fast. Polyacrylamide, starch, and agarose, okay, these are also large molecules, but they squeeze through the pores, okay, and small molecules easily pass through the pores, but the large ones are retarded. I hope this is clear to all of you. Yes, these things are clear to all of you. Yes, sir. Now, applications. So, what are the applications of electrophoresis? So, if we want to determine the high molecular weight compounds like the amino acids, proteins, and the nucleic acid, it's good to perform electrophoresis. Okay, and for DNA sequencing and hybridization, they are the best suited. Okay, and for determining the biological fluid constants, very important. Antibiotic analysis, you can do it through electrophoresis. Thereafter, if you are not assured about purification of vaccines, okay, you perform electrophoresis. Chiral analysis, determining impurities, atropine phosphates, assay of codeine, you can do it very easily. Diagnosis of the genetic toxicology, thereafter, diagnosis of the hereditary diseases, analysis of the carbohydrate can be done by electrophoresis, field of forensic sciences, field of molecular biology. Very, very important. Now the types, they are further classified into zone and moving boundary type of the electrophoresis. So now now the zone electrophoresis is further subclassified as paper electrophoresis, gel electrophoresis, thin layer electrophoresis, cellulose acetate electrophoresis. Now the moving boundary electrophoresis is further classified as capillary electrophoresis, isotachophoresis, isoelectric focusing, and the immunoelectrophoresis. I repeat, zone electrophoresis is classified as paper electrophoresis, gel electrophoresis, thin layer electrophoresis, cellulose acetate electrophoresis. Moving boundary electrophoresis is further subclassified as capillary electrophoresis, iso, iso, isotachophoresis, isoelectric focusing, and the immunoelectrophoresis. Zone electrophoresis, now we will see these two things are there, very, very important, zone electrophoresis and the moving boundary electrophoresis. You can see here the power is attached to, okay, okay, and this is the boundary, okay, zone, this is the boundary, means this is the zone of working, sample application. This is the moving boundary, they are having the cation and the anion. Okay, can we proceed? Can we proceed? Yes. If you had Yes, sir. understood the fact, then we can proceed. Okay. Now, types of electrophoresis. So, introduction. Paper electrophoresis is the type of the zone electrophoresis. Very important laboratory method. Okay, principle. So, charge on the molecule depends upon the medium. Okay, pH of the electrophoresis at low voltage cannot separate the low molecular weight compounds. And why they can't do it? Because there is a process called as diffusion which stops it. Okay, and however, it is easy to illustrate the relationship between the charge and the pH using amino acids instead of proteins and the
macromolecules. I repeat the principle once more. प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल रहता है ना, जो कैरी करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? मीडियम पे। ठीक है ना। फिर जो पीएच रहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो लो वोल्टेज पे सेपरेट नहीं कर पाता है लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को। क्यों? रीजन क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है ना। पर ये इजी है कि इलस्ट्रेट कर पाते हैं आप रिलेशनशिप को बिटवीन द चार्ज एंड द पीएच यूजिंग द अमीनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ प्रोटीन्स एंड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ फिल्टर पेपर। पेपर इसमें कौन सा यूज करना है आपको? अप्रोक्सीमेटली 95% अल्फा सेलुलोज वाला, गुड क्वालिटी का रहना चाहिए। ठीक है ना। एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सिलेक्टेड पेपर कैसी रहना चाहिए? कम होना चाहिए। एपरेटस। एपरेटस में क्या रहेगा? पावर पैक रहेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल रहेगी। जो पावर पैक रहेगा उसमें क्या रहेगा? डीसी करंट रहेगा, और वो प्रोग्राम्ड रहेगा कांस्टेंट वोल्टेज के लिए और कांस्टेंट करंट के लिए। पावर पैक वर्टिकल के लिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल्स में क्या रहेगा? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रहेंगे, दो बफर रिजर्वायर रहेंगे, सपोर्टिंग मीडियम रहेगा फॉर पेपर, और ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग कवर रहेगा। हर एक जो बफर रिजर्वायर रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा दो सेक्शंस में। ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो एक दूसरे से कैसे रहेंगे? इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ठीक है ना। एक सेक्शन में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड रहेगा जो दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा थ्रू सपोर्टिंग मीडियम। फिर इलेक्ट्रोड्स में क्या होगा? पीएच का चेंज आएगा, बफर इन कांटेक्ट विद द सपोर्टिंग मीडियम, वो रिमेन, दैट शुड रिमेन अनअफेक्टेड। फिर जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स रहेंगे उनको निकालना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है ना। विक्स लगाया गया है यहाँ पे, WICKS। ठीक है ना। ऑफ सेवरल फिल्टर पेपर्स ऑफ द गेज आर यूज्ड टू कीप द बफर रिजर्वायर एंड द सपोर्टिंग मीडियम इन कॉन्टैक्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर इसके बाद में जो पेपर रहेगा उसको प्लेस करोगे आप किसके ऊपर में? इंसुलेटिंग मटेरियल पे। ठीक है ना। ये इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा रहेगा? परस्पेक्स शीट करके रहता है, वो रहेगा। फिर जो एंटायर इलेक्ट्रोफोरेटिक जो यूनिट रहेगा वो किससे कवर्ड रहेगा? इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है ना। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको इवेपोरेशन को कम करना है। ठीक है ना। कब? जब वो रनिंग प्रोसेस रहेगा, जब उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ताकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर हो जाए। फिर जितने भी फिल्टर स्ट्रिप्स ये कॉमनली यूज्ड होंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट में रहेंगे। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है ना। ये देखो, ये एयर टाइट, ठीक है ना, फिटिंग्स है, फिल्टर पेपर स्ट्रिप है, यहाँ बफर सॉल्यूशन है, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है ना। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है फॉर द पेपर स्ट्रिप। ठीक है ना। सैंपल वन एप्लीकेशन के लिए रहेगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स लगे रहेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे रहेंगे? बस वही है ये, उल्टा कर दिया ये बफर सॉल्यूशन पे। एग्री? अरे सुन रहे हैं क्या? Yes, sir. अभी लास्ट वाला पेपर में देखो, वही एनोड कैथोड है, सैंपल स्पॉट है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इसी को। अब सैंपल एप्लीकेशन कैसे करते हैं अपन, वो भी देख लेते हैं। सैंपल को स्पॉट करके लगाया जाता है 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर पे, नैरो यूनिफॉर्म स्ट्रिक पे। ठीक है ना। उसके बाद में कमर्शियली एक डिवाइस अवेलेबल होती है जिसके थ्रू इसको सैंपल एप्लीकेशन किया जाता है। सैंपल को अप्लाई करते हैं कब? बिफोर और आफ्टर इक्विलिब्रेटिंग द पेपर विद द बफर। ठीक है।
वेट अ मिनट। ना इलेक्ट्रोफोरेटिक सैंपल एप्लीकेशन कैसे करेंगे आप? से ये तो किया है आपने। उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेटिक रन कैसे करेंगे वो चेक करते हैं अपन। अभी इलेक्ट्रोफोरेटिक रन को क्या करना है? जब आपने सैंपल अप्लाई कर दिया है पेपर पे, इक्विलिब्रेट करिए है पेपर को बफर के साथ में, तो करंट को स्विच ऑन करिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इक्विपमेंट रहेगा उसको इक्विप करिए डिवाइसेस के साथ में, स्टेबल करिए वोल्टेज को, करंट को। ठीक है ना? उसके बाद में एंटायर प्रोसेस को प्लेस करिए कोल्ड रूम में, ओवर हीटिंग ना हो पाए इसका चेक करिए। सेपरेटिंग करिए, प्रोसेस को कंप्लीट करिए विद इन 2 आवर्स, आफ्टर विच पावर को आप क्या करो, स्विच ऑफ कर दो। उसके बाद में पेपर को रिमूव करो, वैक्यूम ड्राई करो 110 डिग्री सेल्सियस पे। इलेक्ट्रोफोरेटिक रन में क्या करते हो? जब आपने सैंपल लगा लिया पेपर पे, इक्विलिब्रेट करो, करंट को स्विच ऑन करो, इलेक्ट्रोफोरेटिक इक्विपमेंट है उसको इक्विप करो डिवाइसेस के हाथ में, जिसमें सुटेबल वोल्टेज रहे, करंट रहे। उसके बाद में स्टिल जो पूरी की पूरी यूनिट रहेंगी उसको प्लेस करो कहाँ पे, कोल्ड रूम में, ताकि कोई ओवर हीटिंग का इशू ना आए। फिर जो सेपरेटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद में पावर को स्विच ऑफ करो। फिर उसके बाद में पेपर को रिमूव करो, वैक्यूम ड्राई करो ओवन में 110 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है? ये इलेक्ट्रोफोरेटिक रन हो गया। नॉट डिटेक्शन, अब इतने भी बात नहीं बनी है, डिटेक्शन भी करना जरूरी है। तो डिटेक्शन में और क्वांटिटेटिव ऐसे में क्या करोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोफेरोग्राम जनरेट होता है, तो एक अननोन इलेक्ट्रोफेरोग्राम यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। उसको कंपेयर करो अननोन इलेक्ट्रोफेरोटिक को स्टैंडर्ड के साथ में। ठीक है ना? और उसके बाद में आइडेंटिफाई करो उनकी फिजिकल और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो वो उसके थ्रू। कैसे करोगे? क्या ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, फ्लोरेसेंस के थ्रू होगा। ठीक है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अभी फ्लोरेसेंस में आप क्या करोगे? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरोग्राम जो भी आपको जनरेट होगा ना, उसकी स्टेनिंग करोगे इथिलियम ब्रोमाइड के साथ में। फिर विजुअलाइज करोगे यूवी लाइट में डीएनए और आरएनए फ्लोरेसेंस के साथ में। और फिर फैसिलिटेट करोगे डिटेक्शन को। इलेक्ट्रोफेरोग्राम यहाँ पे स्टेन करोगे फ्लोरस फ्लोरिकामाइन के साथ में। ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसके साथ में करोगे स्टेनिंग? इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में। ठीक है ना? फिर विजुअलाइज करोगे यूवी लाइट में, डीएनए आरएनए फ्लोरेसेंस रहेगा, तो वो फैसिलिटेट करेगा डिटेक्शन को। फिर इलेक्ट्रोफेरोग्राम में उसको स्टेन करोगे किसके साथ में? फ्लोर फ्लोरिसी फ्लोरोकामाइन। ठीक है ना? क्यों डिटेक्ट करोगे, क्या डिटेक्ट करोगे उसके थ्रू? अमीनो एसिड्स कितने हैं, अमीनो एसिड्स उसके बाद में क्या किस में यूज किए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लोरिकामाइन। ठीक है ना? फिर उसके बाद में लेस्ट सेकेंड थिंग जो यूज करोगे यहाँ पे, वो रहेगा डांसिल क्लोराइड। किस लिए यूज करते हैं फ्लोरिकामाइन को? अगर आपको रिप्लेस करना है तो डांसिल क्लोराइड यूज करो। ठीक है? उसके बाद में यूवी एब्जॉर्प्शन का किसका दिखाएगा? प्रोटीन्स का दिखाएगा, पेप्टाइड्स का दिखाएगा, न्यूक्लिक एसिड का दिखाएगा। एक रेंज रहेंगी 260 to 280, इसमें सब निपट जाएंगे। कौन से कंपाउंड जब स्टेनिंग के बाद में दिखते हैं वो टेबल में दिया हुआ है। यहाँ कंपाउंड्स है, ये डाइज है, उनके कॉमेंट्स है। प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन रहेगा? ब्रोमोफिनॉल ब्लू रहेगा, इसमें एसिटिक एसिड में। और फ्लोरोकामाइन यूज करते हैं। कमेंट्स क्या आते हैं? विजुअल, क्वांटिटेटिव फ्लोरेसेंट और वेरी सेंसिटिव। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा आएगा? मिथाइल ग्रीन, पायरोनिन, इथिडियम ब्रोमाइड रहेगा, डीएनए ब्लू, आरएनए रेड, सेंसिटिव, फ्लोरेसेंट वेरी सेंसिटिव। पॉलीसैकेराइड्स है तो आयोडीन रहेगा, विजुअल सेंसिटिव रहेगा। लाइपोप्रोटीन बोला है तो सुडान ब्लैक रहेगा,
60% इथेनॉल रहेगा उसमें, और विजुअल सेंसिटिव रहेगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला है तो एल्कियन ब्लू रहेगा, विजुअल सेंसिटिव है। फिर उसके बाद में डिटेक्शन करोगे एंजाइम्स का इन सीतु, ठीक है ना, कैसे करोगे वो भी चेक कर लेते हैं। ध्यान रखना एल्सियन ब्लू, ये सब चीज आपको आना चाहिए। आई होप यहां तक समझ में आया आपको। हेलो, हेलो, समझ में आया क्या? हेलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, नाउ डिटेक्शन ऑफ एंजाइम्स करोगे इन सितु में, तो यहाँ पे कंपोनेंट को सेपरेट करोगे एंजाइम्स में, स्पेशल टेक्निक्स यूज करोगे, ठीक है ना। फिर जो पेपर स्ट्रिप रहेगा जिसमें एंजाइम लगा रहेगा उसको आप सेपरेट करोगे, सैचुरेट करोगे सबस्ट्रेट के साथ में, ताकि जो ताकि एंजाइम का सेपरेशन कैसा हो, इजीली हो जाए। उसके बाद में जो पेपर स्ट्रिप रहेंगी उसको कहाँ रखोगे? विद द पेपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन द बफर, ठीक है ना, along with the इलेक्ट्रोफेरोग्राम। फिर जो कलर ब्रांड रहेगा वो अपीयर होगा इंडिकेटिंग एंजाइम पोजीशन। फर्दर मोर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो कलर डेंसिटी को जोन के साथ में और फिर एरिया ऑफ द जोन के साथ में, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द वैल्यू दैट गिव्स द एग्जैक्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। Now the applications of what? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके दो तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक पर्पस है, वेरी वेरी, सेरम एनालिसिस करना है, डायग्नोस्टिक पर्पस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मसल प्रोटीन्स निकालना है, एग वाइट प्रोटीन का कंटेंट, मिल्क प्रोटीन्स, स्नेक एंड इंसेक्ट वेनम का कितना इफेक्ट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now techniques in electrophoresis. So introduction, gel electrophoresis, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्यों यूज किया है? फॉर सेपरेशन, सेपरेशन यानी एनालिसिस, एनालिसिस किसका? मैक्रोमोलिक्यूल्स का, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का, और उसके बाद में उनके फ्रेगमेंट्स का। और इसको करते वक्त में उन्होंने किस बात का ध्यान दिया है कि द सेपरेशन शुड बी बेस्ड अपॉन देयर size and charge. उसके बाद में what is the use of this technique? So they are used in clinical chemistry for separating proteins. They are used in biochemistry for molecular fields and for separating a mixed population of DNA and fragment based upon their length. Thus, the size of the DNA and the RNA fragments can be estimated. Now, in gel electrophoresis, so the gel is used as a anti-convective medium for suppressing the thermal uh, the thermal convection. Okay, convection को रोकना है तो एंटी कन्वेक्टिव मीडियम करके यूज करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। एंड हाउ इट वर्क्स, इट इज सो दे प्रोड्यूस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक electrophoretic field, and gel also serve as a sieving medium. Thereafter, it retards the passage of the molecules. Thereafter, the gels, what they do, they maintain what they maintain the finish separation so that the stains can be applied post electrophoresis. Now, the DNA gel electrophoresis, it is performed फॉर एनालिटिकल पर्पस, ठीक है ना। इसमें आप क्या करते हो? एम्प्लीफिकेशन करते हो डीएनए का वाया पीसीआर, ठीक है ना। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस। अब ये पीसीआर क्या होता है? पीसीआर क्या होता है? थोड़ा आइडिया लगाओ, इजी है पर लेंदी। पीसीआर क्या होता है? हम्म, बोलो बेटा। Polymerase chain reaction.
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है बेटा ये पीसीआर क्लोनिंग। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो। और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? Polymerase chain reaction. हाँ, वेरी सिंपल। मैं वही बोल रहा था ना, ये अपन ने पढ़े है बायोकेमिस्ट्री में, इसलिए पीसीआर का क्या होता है करके। सो हाँ, हाउएवर इट इज अ प्रिपरेटिव टेक्निक यूज्ड मेथड सच एज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, आरएफएलपी। ठीक है ना, व्हाट डू मीन बाय आरएफएलपी? यस, बोलो बेटा। यस सर। हाँ बताओ क्या होता है आरएफएलपी? Restriction fragment length polymerization. हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड, हाँ, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग में, फिर सदन ब्लॉटिंग में, ये सब का यूटिलाइजेशन है। ओके, सो नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख लेते हैं। ठीक है ना, ये टैंक है। ओके, ये जेल कैसेट है, इसमें लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड है, एनोड है, फिर इसके बाद में एनोड का बफर जोन है, कैथोड का बफर जोन है। यहाँ पे सैंपल लगाया जाता है, इसको हैमिल्टन सीरींज के थ्रू पास किया जाता है, नाम है सीरींज का। फिर पावर सोर्स होता है। ठीक है ना, फिर सेपरेट करते हैं प्रोटीन्स को बेस्ड अपॉन द साइज, इलेक्ट्रोफेरोग्राम के इसमें आता है। नौ नौ द थ्योरी। अरे बाप रे। सो नौ थ्योरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनके पास में नेट चार्ज रहेगा, वो माइग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसी फिनोमिना को अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव सेपरेशन होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का। ठीक है ना, तो ये जो उनकी वेलोसिटी होती है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिकल माइग्रेशन वेलोसिटी, उसको हम नाम देते हैं वी करके। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, फील्ड स्ट्रेंथ पे और मोबिलिटी पे। मोबिलिटी को म्यू बोलते हैं। एक इक्वेशन बनती है v माइनस म्यू ई। ठीक है ना, इसको इक्वेशन वन बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर फर्दर उसको क्लासीफाई करते हैं, लॉगरिथमिक लगाते हैं, लॉग म्यू इज इक्वल टू लॉग म्यू जीरो के टी स्मॉल टी टाउरो। सो टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जेल बोलते हैं, के आर रिटार्डेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, म्यू होता है फ्री इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप वेरी सिंपल है। क्या करते हैं इसमें, नेट चार्ज जिसका करेक्ट हो वैसा मॉलिक्यूल को अपन सिलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं उसका माइग्रेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फिर इसके बाद में ये फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये इफेक्टिवली सेपरेट करता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को। ठीक है ना, यहाँ पे हम एक वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं, माइग्रेशन वेलोसिटी। किसकी माइग्रेशन वेलोसिटी रहती है, वो मॉलिक्यूल्स की रहती है। ठीक है ना, उसका नाम देते हैं वी। ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड होती है किसके ऊपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी पे मॉलिक्यूल के। सो वी इज इक्वल वी माइनस म्यू ई करके पहला इक्वेशन होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो लॉगरिथमिक ऑफ म्यू, म्यू जीरो लॉग के टी अपॉन टाउरो। सो टी कॉन्सेंट्रेशन रहता है जेल का, के आर क्या होता है, रिटार्डेशन कोएफिशिएंट होता है, म्यू जीरो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी रहती है, मोबिलिटी ऑफ नॉन सीविंग, mobility in the non-sieving medium. I hope this is clear to all of you. Yes.
यस। हेलो। हेलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया कि फिर से बोलूं? Yes, sir. हाँ। सुनाओ प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो आप क्या करो, मिक्सचर बनाओ इलेक्ट्रिकली चार्ज बायोमोलिक्यूल्स का अपोजिट फील्ड के साथ में। उनकी फील्ड स्ट्रेंथ बराबर रहना चाहिए। फिर जो पार्टिकल्स रहेंगे ना, वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोड में रखो। ठीक है ना? फिर उनकी जो फिजिकल मूवमेंट रहेंगी वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, डिफरेंट रेट्स पे वेलोसिटी रहेंगी। ठीक है ना? और वो उसके बाद में वहां पे नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल रहेगा। और एफ यानी क्या होगा, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। तो एक इक्वेशन बनती है, वी वी यानी क्या, चार्ज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ई क्यू। क्यू बोला तो नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट नहीं, डिवाइडेड बाय एफ यानी क्या, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। नाउ टाइप्स ऑफ जेल्स। पर जेल्स के टाइप में कौन से होते हैं? तीन टाइप होते हैं, स्टार्च जेल, अगार, पॉलीएक्रिलामाइड। स्टार्च में कौन सा यूज होगा? नाम सीधा बता रहा है, पोटैटो स्टार्च। उसको हाइड्रोलाइज करोगे एसिटिक एसीटोन के साथ में 37 डिग्री सेल्सियस पे। अगार बोले तो एगारोज और एगारोपेक्टिन का बना रहता है, यानी गैलेक्टोज बेस्ड पॉलीमर है वो। पॉलीएक्रिलामाइड बोला तो किस लिए यूज होता है? पॉलीएक्रिलामाइड इंक्लूडिंग पॉलीएक्रिलामाइड मोनोमर, एन एन मिथिलीन, बिस एक्रिलामाइड। फिर उसके बाद में टेमेड, उसके लिए टेमेड यानी क्या, टेट्रामिथिलीन डायमाइन और अमोनियम परसल्फेट। ये सब ये पॉलीएक्रिलामाइड के क्या है, कंपोजिशन है। एगारोस जेल बोला, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या करते हैं आप, अरेंजमेंट करते हैं किसका, हॉरिजॉन्टल स्लैब का। ठीक है ना? फिर जो जेल रहेगा उसको पोर करते हैं प्लास्टिक ट्रे पे, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है ना? प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के थ्रू। फिर जो जेल रहेगा उसको इमर्स करते हैं बफर सरफेस पे और इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना? अब ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद में रेजिस्टेंस कितना आता है, किसका भाई, जेल का। ठीक है ना? एंड दैट शुड बी सिमिलर टू द बफर, एंड significant portion of the applied current should pass along the length of the gel। ठीक है? ये देखो अगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यहाँ पे देखो डीएनए माइग्रेशन होता है। ये जो ब्लैक वाला स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये अगारोज जेल है। ठीक है ना? ये वेल है, ये बफर है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना? देखो ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है डायग्राम। ये डीएनए माइग्रेशन कैसा होता है, डाउनवर्ड्स। फिर जो रेजिस्टेंस होता है जेल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, वो सिमिलर होता है तो बफर, और सिग्निफिकेंट पोर्शन उस पे अप्लाई होता है करंट का, जो पास होता है लेंथ ऑफ द जेल के साथ में। फिर इसके बाद में प्रिपरेशन होगा, स्टेनिंग होगा जेल का। ठीक है ना? तो अब ये प्रिपरेशन और स्टेनिंग कैसे करोगे, आपको एगारोस पाउडर लेना पड़ेगा। ठीक है ना? उसको फिर बॉईल करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा बफर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है ना? फिर रिलेक्टेंट सॉल्यूशन को उसमें पोर करना पड़ेगा जेल ट्रे में। फिर उसको कूल करो रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करो, उसको स्टेनिंग करो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, फ्लोरेसेंट डाई है। ठीक है ना? डीएनए इन एगारोस जेल कैन बी कन्वीनियंटली विजुअलाइज्ड। एग्री? आई रिपीट, प्रिपरेशन स्टेनिंग कैसे करते हैं, एगारोस जेल पाउडर लो, बॉईल करो, मेल्ट करो बफर सॉल्यूशन में। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसको जेल ट्रे में डालो, उसको कूल करो रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में पॉलीमराइजेशन होगा। फिर स्टेनिंग करो उसकी इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में, फ्लोरेसेंट डाई के साथ में। डीएनए इन एगारोस जेल को आप कन्वीनियंटली विजुअलाइज करो। ठीक है? फिर इसके बाद में जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डीएनए माइग्रेशन, वो कौन से होते हैं, वो चेक करेंगे। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेलोसिटी ऑफ डीएनए माइग्रेशन को जेल के साथ में अफेक्ट करते हैं। पहला रहता है वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज अप्लाइड क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है ना?
एगारोस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, एक लीनियर रिलेशनशिप चाहिए तो आपको एगारोस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा. सो what it suggests a linear relationship between the logarithm of the electrophoretic mobility of the DNA and the agarose concentration in the gel. फिर जो मॉलिक्यूलर साइज होता है डीएनए का वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी रहेंगी ऑफ द लीनियर डबल पास मॉलिक्यूल डीएनए. देखो ध्यान दो, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द डीएनए में क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी रहेंगी किसकी, लीनियर डबल साइज डीएनए की, और लॉग टू द बेस 10 ऑफ द नंबर ऑफ द बेस पेयर्स की. बेस पेयर यानी क्या, साइज कंपोनेंट ऑफ द के आर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद में प्रिपरेशन होगा और स्टेनिंग करेंगे जेल का, ठीक है ना. तो आप क्या करो, एक मिक्सचर बनाओ पॉलीएक्रिलामाइड का और बिस एक्रिलामाइड का, और उसमें बफर में बनाओ उसको, और उसमें अमोनियम पर सल्फेट भी ऐड करो. फिर रेडिकल्स इनिशिएट करेंगे पॉलीमराइजेशन. फिर जो ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन रहेगा ना, उसको पोर करो 2 ग्लास प्लेट्स के में. उसके वजह से क्या होगा कि जेल को सर एक शेप मिल. हाँ बोलो. सर ये कैपेसिटी हो चुकी है सर स्टूडेंट की, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मीटिंग. ऐसा हो ही नहीं सकता. सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँ ग्रुप पे. नहीं, कोई स्क्रीनशॉट की मेरे को जरूरत नहीं है. मेरे पास में लाइसेंस सॉफ्टवेयर का ऑथराइज पीडीएफ कॉपी है. 150 स्टूडेंट आराम से आते हैं उसमें. सो प्रिपरेशन और स्टेनिंग में आप क्या करो, मिक्सचर बनाओ, ठीक है ना. किस में बनाओगे, बफर में. किसका मिक्सचर बनाओगे, एक्रिलामाइड का, बिस एक्रिलामाइड का, ठीक है ना. और उसको ऐड करोगे अमोनियम पर सल्फेट के साथ, ताकि आपको क्या प्रोवाइड होगा, फ्री रेडिकल्स का इनिशिएट करेंगे वो पॉलीमराइजेशन. अब जो ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन रहेगा उसको पोअर करो 2 ग्लास प्लेट्स पे. उसके बाद में उसको अटेन करो शेप ऑफ द जेल के साथ में, और उसको होल्ड करो प्लेस पे. नाउ डिफरेंट स्टेन्स आर यूज फॉर रिवीलिंग द प्रोटीन इन द पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है ना. वो कौन से वो देख लेते हैं अपन, ठीक है ना. स्टेनिंग की वजह से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा. तो सिल्वर स्टेनिंग करोगे आप, तो इसमें सिल्वर स्टेनिंग में क्या करोगे, जो सिल्वर आयंस रहेंगे वो रिएक्ट करेंगे ग्लूटामेट के साथ में, एस्पार्टेट के साथ में, सिस्टीन के साथ में, रेसिड्यू के साथ में, और प्रोटीन्स के साथ में, और क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. फिर स्टेनिंग करोगे प्रोटीन बाइंडिंग डाइज की, ठीक है ना. डिफरेंट डाइज लोगे, उनको बाइंड करोगे, प्रोटीन्स यूज करोगे. कॉमन यूज्ड जो प्रोटीन रहेगा वो उसका नाम क्या है, कोमेजी ब्रिलियंट ब्लू. ध्यान देना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. कौन सा रहेगा, कोमेजी ब्रिलियंट ब्लू. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना. 2 स्टार्च की टेक्निक्स है. पहली वाली क्या है, स्टेनिंग, किससे, केमिकल रिएक्शन से. सिल्वर स्टेनिंग में आए, सिल्वर आयन रिएक्ट करेंगे ग्लूटामाइड के साथ, एस्पार्टेट के साथ, सिस्टीन के रेसिड्यूज के साथ, प्रोटीन्स के साथ, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. सेकंड क्या है, स्टेनिंग करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग डाइज के साथ में. तो डिफरेंट डाइज को आप बाइंड करेंगे प्रोटीन्स के साथ में, ठीक है ना. मोस्ट कॉमन उसमें कौन से रहेंगे, कोमेजिव ब्रिलियंट ब्लू. देयर आफ्टर, नाउ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन. तो माइग्रेशन ऑफ एसडीएस, जो भी आपके प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सेस इन द रिजॉल्विंग जेल, इनको कौन अफेक्ट करेगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट. पॉलीएक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का जो आप रेशो बनाते हो ना, वो दैट विल अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ के आर एंड टोटल पॉलीएक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन. तो फिर इसके बाद में जितने भी क्रॉस लिंकिंग फॉर्म्स रहेंगे ना बिसएक्रिलामाइड के, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ जेल को, ठीक है ना, ताकि वो पोर्स में से पास हो जाए एसडीएस पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस के. फिर इसके बाद में पोर साइज को आप डिक्रीज करोगे ताकि इंक्रीज हो बिसएक्रिलामाइड एक्रिलामाइड रेशो को, ठीक है ना. मिनिमम रेशो जो ऑब्टेन होना है वो कैसा रहना चाहिए, 1:20 का रहना चाहिए. फिर जो एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स रहेंगे
उसको कास्ट करोगे मॉलिक्यूलर रेशियो में, रेशियो कितना रहेगा, 1:29 का रहेगा, और वो रिजॉल्व कर देगा ये इशू को, पॉलीपेप्टाइड्स को, डिफरेंट साइजेस बाय अ लिटिल एज 3%। ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया यहां तक बेटा, समझ में आया? मैं हिंदी में जा रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश में नहीं का इशू आ रहा होगा, तो हिंदी में आपको मैं इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, 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 सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। समझ में आया? यस। एप्लीकेशंस, ठीक है ना। अब एप्लीकेशंस कहाँ है? एस्टिमेट करना है साइज डीएनए मॉलिक्यूल का, रेस्ट्रिक्शन के बाद में एंजाइम डाइजेशन के बाद में रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करना है क्लोन डीएनए का, एनालाइज करना है पीसीआर प्रोडक्ट्स को, मॉलिक्यूलर जेनेटिक डायग्नोसिस करना है, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट करना है रेस्ट्रिक्टेड जीनोम डीएनए को, किससे, सदर्न ट्रांसफर से, या फिर सेपरेट करना है आरएनए को नॉर्दर्न ट्रांसफर से। ठीक है ना, इसको तो याद ही कर लो तुम। ठीक है ना, ये सदर्न ट्रांसफर, नॉर्दर्न ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे फिर इसके बाद में फॉरेंसिक साइंस में बड़ा काम का है, मॉलिक्यूलर साइंस में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत काम का है, जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी में बहुत काम का है, बायोकेमिस्ट्री में भी। वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट रहता है, इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में फॉर सेपरेटिंग द प्रोटीन। ठीक है ना, फिर इसके अंदर उनको लेबल करोगे एंटीबॉडीज को स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ में। फिर उसके बाद में कंपेयर कर सकते हो आप सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द स्पीसीज, उसका यूज फॉर डिटरमाइनिंग जेनेटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग द स्पीसीज। नाउ द टेक्निक्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां तक समझे आपको बेटा? हेलो, Yes, sir. यस सर। अभी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करोगे, सेपरेशन करोगे आयंस का, और ये सेपरेशन रहेगा, इसका बेसिस क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या ऐसी हो जाएंगी क्या, आपको अप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज के साथ में। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी रहेंगी ऑन द मॉलिक्यूलर चार्ज, विस्कोसिटी और एटॉमिक रेडियस, ये 3 पॉइंट्स पे रहेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं क्या बोलता है। सिंपल डिजाइन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। ठीक है ना, इसमें क्या रहता है, एक ऑटो सैम्पलर रहेगा, ठीक है ना, डिटेक्शन मॉड्यूल रहेगा, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई रहेगा, और कंप्यूटर रहेगा। जो कैपिलरी एंड्स रहेंगे उनको आप इसमें प्लेस करेंगे, बफर रिजर्वायर में, ईच कैरिंग द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। ठीक है ना, 30 kV के साथ सैंपल को आप इंजेक्ट करेंगे कैपिलरी में। कैसे, टेम्पररी रिप्लेसिंग द बफर सॉल्यूशन, बफर रिजर्वायर्स जो एनोड में रहते हैं, फिर विद द सैंपल रिजर्वायर। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, देन आइदर इलेक्ट्रोफोरेटिक पोटेंशियल लगाएंगे, या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे कैपिल अक्रॉस द कैपिलरी। ठीक है ना, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और सेपरेशन वहां पे आप अचीव करेंगे। जो सेपरेटेड एनालाइट्स होते हैं, ये ऑप्टिकली आप इनको यूवी विजिबल या फिर फ्लोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू देख सकते हैं, थ्रू कैपिलरी वॉल नियर द अपोजिट एंड ऑफ द कैथोड। अब जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये किसके लिए बेस्ट है, ऑटोमेशन के लिए। ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन द वेरियस फैमिलर टू दैट ऑफ द मॉडर्न एचपीएलसी। ना इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसका। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, सेपरेट करना है, बेसिस ऑफ द सेपरेशन का बेसिस क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी रहेगा। ऐसी हो जाएगा क्या, नहीं, अप्लाइड वोल्टेज के साथ में रहेगा। देखो यहाँ पे एक कैपिलरी कूलिंग सिस्टम है, सैंपल फ्लो है, ठीक है ना, डिटेक्टर है यहाँ पे बफर सैंपल है, अप्लाइड वोल्टेज रहेगा जो बेसिस है, यहाँ पे बफर लगा हुआ है, फिर यहाँ कंप्यूटर है, फिर इलेक्ट्रोफेरोग्राम है। नाउ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किसके ऊपर रहती है, ये प्रोसेस में आप क्या करोगे, सैंपल आयंस को इन्फ्लुएंस करोगे अंडर अप्लाइड वोल्टेज के साथ में। ठीक है ना, फिर जो अंडर आयंस रहेंगे जो फोर्स के साथ में जाएंगे,
नेट चार्ज रहेगा, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी। फिर जो सैंपल्स रहेंगे उनको अफेक्ट करोगे, उनकी फोर्स ट्रैक करोगे, उनकी फोर्स को, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ट्रांसलेशनल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होंगे। देखो ध्यान दो, जो सैंपल आयंस रहेंगे उनको अफेक्ट कैसे करोगे आप, यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगाओगे, फोर्स के ऊपर में धक्का लगाओगे, और वो जो ड्रैग फोर्स रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। और उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होंगी। यहाँ पे वो इक्वेशन दी हुई है, म्यू ई पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। क्यू को क्यू डिवाइडेड बाय एफ का मतलब 6 पाई मीटा आर करके दिया है, और यहाँ पे जो एफ है उसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। और किसके लिए, स्पेरिकल मॉलिक्यूल के लिए स्टोक्स लॉ ने बताया है। नीटा क्या है, विस्कोसिटी है मीडियम की, आर क्या है, रेडियस है सिस्टम का, ठीक है ना। माइग्रेशन रेट जो सैंपल आयन का है वो किसको, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है ना। यानी एक्चुअल वेलोसिटी जो आयंस की रहेंगी वो प्रोपोर्शनल रहेंगी किसको भाई, मैग्नेटिक, अप्लाइड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फिर इलेक्ट्रिक इक्वेशन 4 बनती है, V इज इक्वल टू म्यू ई पी अपॉन ई, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी म्यू ई पी, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, V भी पता है आपको, वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ हायर वोल्टेज, ठीक है ना, माइग्रेशन ऑफ आयनिक स्पीसीज विल हैपन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. हाँ, देयर आफ्टर Yes, sir. हाँ, देयर आफ्टर इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो, जिसको अपन ईओएफ बोलते हैं, ठीक है ना। ईओएफ में भी वही क्या करेंगे आप, हायर वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिलरी पे। फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो ऑकर होगा, ठीक है ना। उसके ये फ्लो की वजह से क्या होगा, पीएच ऑफ द बफर जो रहेगा सिलिका कैपिलरी का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 3। एंड SiOH जो भी ग्रुप्स रहेंगे, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड जो भी ग्रुप्स रहेंगे, उसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन रहेगा जो SiO मॉलिक्यूल के साथ में, आयन के साथ में कंबाइन होगा। देयर आफ्टर कैपिलरी वॉल हैज अ नेगेटिव चार्ज, वो डेवलप होगा डबल लेयर ऑफ द कैटायन के साथ में, वो अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है ना। ध्यान दो अच्छे से, ईओएफ इंडिकेट्स इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो। इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग द हाई वोल्टेज, ठीक है ना, किसके ऊपर में, इलेक्ट्रोलाइट फील्ड कैपिलरी पे। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो ऑकर होगा, उसके बाद में ये जो फ्लो रहेगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द बफर of the buffer running through silica capillary, more than 3 सिलिका SiOH ग्रुप्स रहेंगे, सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, प्रोटॉन लूज करेंगे, और वे दे विल बिकम SiO माइनस आयंस। कॉन्जिक्वेंटली जो कैपिलरी वॉल्स रहेंगे वो नेगेटिव चार्ज रहेंगे और डेवलप हो जाएंगे एक डबल लेयर के, वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर जो इनर कैटायन लेयर रहेंगी वो स्टेशनरी रहेंगी, आउटर वन जो रहेंगी वो फ्रीली मूव होंगी थ्रू द कैपिलरी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्री कैटायंस रहेंगे वो मूव होंगे थ्रू द कैथोड और क्रिएट करेंगे एक पावरफुल बल्क फ्लो। इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक जो फ्लो रेट रहेगा दैट विल बी गवर्न बाय द इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 5 बनती है, म्यू ई ओ एफ, ठीक है ना। तो इप्सिलॉन जो बोलते हैं, इप्सिलॉन यानी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। नीटा बोले तो विस्कोसिटी रहेगा। कैपिटल ई बोला तो क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा। और ये जो जेड टाइप का दिख रहा है वो है जीटा पोटेंशियल। उसके बाद में देखो यहाँ पे, ये कैपिलरी वॉल सबसे टॉप पे है, फिर स्टर्न लेयर है, डिस्पर्शन लेयर है, ठीक है ना, ईओएफ बल्क सॉल्यूशंस है। उसके बाद में फर्दर मोर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा रहेंगी,
जब इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नेचुरली अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज, और फिर वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो फिर बात कुछ बनती है। एग्री? देयर आफ्टर जीटा पोटेंशियल और पीएच किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, डेंसिटी पे। डेंसिटी किसकी, कैपिलरी वॉल की, और प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। मोबिलिटी जो ईओएफ की रहेंगी वो वेरी करेंगी बफर पीएच के साथ में। इसका मतलब क्या है कि जो ईओएफ मोबिलिटी रहेंगी उसको आप कंपेयर करेंगे ग्रेटर एट हायर पीएच के साथ में। नाउ फ्लो प्रोफाइल इन द सीई, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक पैराबोलिक कर्व यहाँ पे आपको फ्लो प्रोफाइल में मिलेगा, ठीक है ना, दैट इज जनरेटेड बाय एक्सटर्नल पंप। और उसके बाद में यहाँ पे फ्लैट फ्लो प्रोफाइल रहेगा, ठीक है ना, ड्राइविंग फोर्स रहेगा चार्ज कैपिलरी वॉल का, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा थ्रू आउट द कैपिलरी। और इसके वजह से क्या होगा, ये जो पैराबोलिक कर्व बनेगा लैमिनर फ्लो प्रोफाइल के साथ। अब ये जो फ्लैट फ्लो प्रोफाइल है यूएफ का, ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा जोन ब्रॉडनिंग को, और उसके वजह से क्या होगा, हायर सेपरेशन एफिशिएंसी आपको अलाउ होंगी, ठीक है ना। उसके बाद में सेपरेशन बेस्ड अपॉन द मोबिलिटी हो जाएगा। अब लास्ट थिंग जो देखना है अपने को है वो है इलेक्ट्रोफेरोग्राम। डेटा आउटपुट देना है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इलेक्ट्रोफेरोग्राम चाहिए। ये सिमिलर रहता है क्रोमेटोग्राम के, ठीक है ना। इसमें प्लॉट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द माइग्रेशन टाइम रहेगा विद द डिटेक्टर रिस्पॉन्स रहेगा। एप्लीकेशन होगा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये किस लिए यूज होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, फॉर क्वालिटेटिव टेस्टिंग, एब्सेंस ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स, इंटरफेरेंस, एंड हैविंग बेसिक अमीनो ग्रुप्स will not stick to the capillary, and thus the capillary can be used for the separation। ये इसका एप्लीकेशन है। फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ काम आता है, सिक्वेंसिंग करना है ह्यूमन जीनोम को, सेपरेट करना है डीएनए को, सेपरेशन करना है, कैपिलरी को आप इंजेक्ट करो पॉलीमर के साथ में, एडिशनल मोड ऑफ सेपरेशन बेस्ड अपॉन किसके ऊपर रहेगा, साइज, वही स्मॉलर फ्रैगमेंट ट्रैवल फास्टर करेंगे थ्रू द जेल, और ये मेथड को ही अपन कॉल क्या कहते हैं, सीविंग मेथड बोलते हैं। एग्री? समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है।